Hello everyone, welcome to the class again. Dear children, in the last class we were talking about the drainage system of India. In that system we saw that how the river system or the drainage system of India has been divided into two major geographical regions, and accordingly they have been called as Peninsular Drainage System and the Himalayan Drainage System of the river system. So today we will be discussing about the Himalayan river system. So let's get start. So Himalayan river, the major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, and these rivers are long and are joined by many large and important tributaries, and a river along with its tributaries may be called a river system. As I was telling you that these rivers in the Himalayan regions are very large, long and joined by many large and important tributaries. So as they are fed up by both rainwater and as well as the melting snow, therefore they have long course as well as very deep water. And here you can see the first one being the Indus river system. The Indus river system, the Indus rivers lies in Tibet near the lake Mansarovar. It originated from the near the Mansarovar lake, flowing west, and thereafter it flows to the west. It enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It enters in India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms picturesque gorge in this part. इस एरिया में एक picturesque gorge create करता है. Gorge, as I tell you last day that how what it is now, it is the streams of water worldwide rocky surfaces or like two mountains, यानी कि जो narrow stream of water which is walled by rocky walled, right, rocky surfaces दोनों साइड में जो रहता है, ऐसे gorge होता है, often they are very deep and narrow in the course. So ये क्रिएट करता है सेवरल ट्रिब्यूटरीज, लाइक इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसके ज्वाइन हुए हैं. सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक झस्कर, द नुब्रा, द श्योको एंड द हुंजा join it in the Jammu and Kashmir region. The Indus flows through the Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. और वो कहाँ निकलता है ना, एटक नाम का जगह में वो निकलता है. एंड द सतलेज, द बीज, द रवि, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन, कहाँ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन टू एंटर द इंडस नियर द मिथानकोट इन पाकिस्तान. ये सारे रिवर पाकिस्तान में ज्वाइन हुए हैं. और कश्मीर रीजन में क्या क्या है, जस्कर, नुब्रा, श्योको एंड हुंजा, ये कश्मीर रीजन में ज्वाइन हुए हैं. और ये सारे सतलेज, बीज, रवि एंड चेनाब, ये सारे आपके ना इंडस रीजन्स में ज्वाइन हुए हैं. एंड बियॉन्ड दिस द इंडस flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi, or it drains into the Arabian Sea east of Karachi में. The Indus plain has a very gentle slope. Indus plain has a very gentle slope, यानी कि very very less ups and down, यानी कि very gentle और plain area. Okay, slope इतना ज़्यादा नहीं है. Okay, it has a total length of 2900 kilometers. The Indus is one of the longest rivers of the world. ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है. ओके, दुनिया के बड़े बड़े रिवर में से एक है. ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान. देखो, भारत के सिर्फ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के एरिया में ही ये है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, और इसके अभी इस एरिया में ही है. जैसे कि आप अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हो. ओके, सो इस एरिया में ही सिर्फ कौन सा है आपके ना, ये इंडस का रिवर सिस्टम है. तो आपको इधर कौन कौन सा याद करना है आपको, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसका ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, मैं कल बता रहा था, ट्रिब्यूटरीज, एरिया कवर्स, कौन कौन सा स्टेट को कवर किया है, कवर, उसका लेंथ. ओके, और किसी भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने मनमर्जी, और उसके रिलेवेंट के बारे में भी आप कुछ लिख सकते हो. दिस इज दैट अप टू योर 5 पॉइंट इज अप टू यू. सो इसमें और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाला है. तो अकॉर्डिंग टू
The regulations of Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the water carried by the Indus River system, and this water is used for irrigation in Punjab, Haryana and southern and western parts of Rajasthan. So this is all about Indus River system. Indus River system is one of the important river system in the world and in India. इंडिया के हालांकि ये कम परसेंट है, फिर भी इंडिया का ही माना जाता है आधा. ओके, सो आगे देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम. ओके, गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री बिकॉज ये गंगा अकेला ही यानी कि कम्प्लीटली भारत में है. सो इसमें देखते हैं द हेड वाटर, जहाँ से शुरू है. द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर. कहाँ से आया है ये ना, ओरिजिनेशन प्लेस क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर. लेकिन वो इंडस का कहाँ है, मानसरोवर, नियर मानसरोवर का एक ग्लेशियर से हुआ है. एंड जॉइन बाय अलकानंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. और जब भागीरथी आया है ना, कहाँ ज्वाइन हुआ ये ना, आपके उत्तराखंड में कहाँ ज्वाइन हुआ है, अलकानंद के साथ ज्वाइन हुआ है. एंड द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स. और उसी जगह से माउंटेन से आपका प्लेन रीजन को वो टच किया है. तो इधर आप मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये वाला मैं दिखा लेता हूँ आपको. सो ये था आपके इंडस रिवर सिस्टम. आप देखिए इधर ना, ये कल भी मैं दिखाया था, ये है आपके इंडस रिवर सिस्टम. ऐसे करके ये गया है एंड इट ड्रेन्स इनटू द बे अरेबियन सी. सो द रिवर व्हिच जॉइन द इंडस रिवर सिस्टम आर हियर. ओके, ह्योको, हुंजा, ओके, ये सारे हैं. और द ट्रिब्यूटरी व्हिच जॉइन Indus are Chenab, Ravi, Satluj. बट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर सिस्टम इधर है, ये आसपास तीनों ही हुए हैं. ये कहाँ से ये शुरू हुआ है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से आया है और ऐसे ऐसे मूव करके इधर से ये हुगली टू हो गया है और इधर से आपका देयरफॉर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ब्रह्मपुत्र इधर है, मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ, ये ब्रह्मपुत्र है. ओके, ये देखो तीनों का रिवर सिस्टम एक ही आसपास जगह से क्रिएट हुए हैं. ओके, सो लेट्स सी अबाउट गंगा. Here you can see the Ganga in the map, right? So here you can see this is Alaknanda and Bhagirathi, confluence of भागीरथी एंड अलकनंदा एट ये देवप्रयाग. ये देवप्रयाग है, इसमें ये ज्वाइन हुआ है. कहाँ, ये है इधर एक रिवर इधर. दिस इज अलकानंद देवप्रयाग. ओके, बोथ भागीरथी द हेड वाटर एंड अलकनंदा द रिवर हैव बीन जॉइंड हियर. सो हियर देखते हैं द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय. ए फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच है. यमुना है इसका मेजर रिवर, यमुना, द घाघरा, द गंडक, द कोसी, इनका ट्रिब्यूटरीज है. द रिवर यमुना राइजेस इन यमुनेत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयस. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज ए राइट एंगल ट्रिब्यूटरी मीट्स गंगा एट इलाहाबाद. इलाहाबाद में वो ज्वाइन हुए हैं. कहाँ, इलाहाबाद में आपके ये दोनों ज्वाइन हुए हैं. कौन कौन सा, गंगा एंड यमुना. वो कहाँ से, ये देखो, दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, दे रन पैरेलल टू ईच अदर अप टू इलाहाबाद. इलाहाबाद में ये दोनों ज्वाइन हुए हैं. लेकिन मेन रिवर किसको माना गया है ना, गंगा को माना गया, क्योंकि वो बड़ा है उससे. क्लियर. और उसका बहुत सारे, गंगा का बहुत सारे ट्रिब्यूटरी क्या है, चंबल, बेटुआ, ये है घाघरा, गंडक, कोसी, इसका ट्रिब्यूटरीज है. ये चंबल इसके साथ पहले मिले हैं, उसके बाद ये सबका इधर गंगा का ट्रिब्यूटरीज बन गए हैं. सो now we can see that the Ganga river system here, now with its tributaries you can see the river Yamuna rises from the Yamunetri glaciers in the Himalayas. It flows parallel to Ganga and as a right angle tributary meets at the Ganga at Allahabad. The Ghagra, the Gandak, the Kosi rises in the Nepal Himalayas. ये सारे नेपाल हिमालय बताया था मैंने पंजाब हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय. तो ये कहाँ से, नेपाल हिमालय से आया है. दे आर द रिवर्स विच फ्लो पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेरेज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज ऑल्सो. ये बहुत बाढ़ ला के आ जाते हैं. ओके, एवरी ईयर
At the same time, they also create a very good hospitable situation for the growth of cultivation in these regions. Okay, the main tributaries which come from the peninsula uplands are the Chambal, मैं दिखा रहा था, the Betwa and the Son. The rises from the semi-arid areas have shorter course, do not carry much water in them. Okay, ये सारे आपके होता है ना, और वो कैसे जॉइन हुए हम देख चुके हैं। ये सारे इसका रिवर का सिस्टम है। और उसके बाद देख सकते हैं द सुंदरबन डेल्टा सुंदरी ट्री से बना है। ये बाद में देखेंगे डेल्टा क्रिएट किया है बिफोर गंगा रिवर सिस्टम मिक्स विद द बे ऑफ बंगाल। Now it has created delta. Delta derived from the names. Sundarban delta derived from the name Sundari trees, which grows well in this marshy land. It is the world's largest and fastest growing delta. It is also home to Royal Bengal tiger. ये दिया है उसके बारे में। सो आगे देखते हैं द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज 2500 किलोमीटर, राइट, एंड आमला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। आमला नाम का जगह है जो कि वाटर डिवाइड है, एक अपलैंड है जो कि डिवाइड कर दिया है ये दोनों ड्रेनेज बेसिन को। द प्लेन्स वेर आमला टू द सदर्न स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। द प्लेन्स फ्रॉम आमला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। देखो कितना बड़ा वास्ट प्लेन है। आमला से कहाँ, आमला से ये सुंदरबन 1800 kilometer, only vast stretches of plain, but the fall in its slope is hardly 300 meters. 300 meters ही सिर्फ इसका फॉल है, यानी कि जेंटल स्लोप है। सो देयरफॉर इट ऑन द वे इट ऑल्सो क्रिएट मेंडर्स। मेंडर क्रिएट किया है ना। बैंड ऑफ द रिवर को क्या बोलते हैं, मेंडर क्या करते बोलते हैं। और डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न बनाया है। क्या बनाया है, ड्रेनेज पैटर्न। 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिवर ऑन इट्स कोर्स ना, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। कोई डेंट्रिटिक बनाता है, कोई रेक्टेंगुलर बनाता है, ओके, और कुछ रेडियल है, रेडियल पैटर्न है। 4 तरह के है जो ड्रेनेज पैटर्न हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिवर सिस्टम इज योर ब्रह्मपुत्र। आई शोड यू इट हैज कम थ्रू द वे ऑफ चाइनास एंड एमर्जेस इनटू इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश में वो भारत को एंटर किया है। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र rises in the Tibet east of the Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and Satluj. चाइना में क्यों बोला, क्योंकि तिब्बत को चाइना ले चुका है। It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. ज़्यादातर के इसका outside India में है। It flows eastward parallel to the Himalaya. हिमालय के साथ ये parallel होके आया है, मैं दिखाया था। On reaching the Namcha Barwa, it takes U-turn, ऐसे U-turn करके आ जाता है, ऐसे मूविंग करता है, ऐसे यू टर्न करके भारत को एंटर कर दिया है। टेक्स द यू टर्न, आई विल शो यू अगेन। यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज के माध्यम से आता है। एंड हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इज जॉइंड बाय दिबांग, लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। आसाम में इसका नाम हो गया है ब्रह्मपुत्र नाम। उसका पहले से सांगपो नाम से वो जाना जाता है। क्या से कौन सा नाम है, ब्रह्मपुत्र इन नॉन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं और सांगपो तिब्बत में इसको नाम सांगपो है। इसके बाद एमर्ज विद द वाटर, ये देखो, हाँ आगे देखते हैं इसके बारे में। यस, thereafter enlarged with the waters from the right. This again enlarged with the waters from its right and left bank tributaries. The Ganga flows eastward till the Farakka in West Bengal, and this is then what has happened ना, ये तक हुआ है। Okay, leave it from there. तो उसके बाद जो तिब्बत में गंगा जो रिवर सिस्टम आया है, लिबिट जो ब्रह्मपुत्र जब आया है सांगपो को, ओके, सांगपो एंड द सांगपो हैज टर्न इन द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र देयर एंड इन तिब्बत रिवर्स कैरी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट
एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया, उसी एरिया से कम पानी लेके आता है। ओके क्योंकि वो दैट पासेस थ्रू द कोल्ड रीजन और आइसोलेटेड एरियाज एंड वेरी लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स विद द ब्रह्मपुत्र रिवर, सांगपो रिवर के कम पानी आता है। एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू इंडिया इट रीचेस टू द प्लेन लैंड देयर वेयर ही कुड फाइंड ए लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट्स वे। इस जगह में ज़्यादा रैपिड हो जाता है जब वो माउंटेन से होके प्लेन आता है, प्लेन भारत का प्लेन एरिया आता है, तो उस एरिया में ज़्यादा रैपिड हो जाता है उसका स्ट्रीम, और साथ में बहुत सारे एरोजनल एक्टिविटी करके आ जाता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू ए रीजन विद हाई रेनफॉल, हियर द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कंसिडर वाटर लेके आता है, एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट भी लेके आता है। And the Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine island। जैसे कि माजुली नाम का एक रिवराइन आइलैंड बना है, जैसे कि एंड एवरी ईयर ड्यूरिंग इट्स रेनी सीजन द रिवर फ्लूज इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश। ये आसाम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिश कराता है। एंड Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river's bed to rise. The river also shifts its channel frequently। और भी क्या होता है, the river also shifts its channel frequently। तो ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड बना है, साथ में बहुत सारे ये यानी डिवास्टेटिंग सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि आसाम और बांग्लादेश के एरिया में फ्लड लेके आ जाता है। और द ब्रह्मपुत्र मार्क विथ ह्यूज डिपोजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, बहुत सारे सिल्ट लेके आता है, क्ले सॉल्ट, क्ले एंड सिल्ट यानी कि जो सॉइल लेके आ जाता है, एंड दैट डिपोजिट्स ऑन इट्स बैंक्स एंड द प्लेन। Then this was all about your Himalayan river system, the three major river system, and you will definitely get a question on this. So prepare all of the three in a very systematic manner, plan out the thing whatever I shared regarding the Indus river system में जो बताया, जो जैसे लिखना है, and that way you have to write। Okay, so that is a system you can attempt the questions in a very systematic way। Okay, thank you। So rest of the thing we will discuss in the coming lectures। Thank you, bye bye।